Good afternoon, student. Today, in common disease in children, we study about the acute respiratory tract infection. Yesterday, we have seen or learned about the chickenpox, that is called variola, and German measles, that is rubella. So today we discuss about the common cold. It is a very first topic on acute respiratory tract infection. So let's start. So the subheadings which we are discussed here is introductory part, and then we discuss about the definition. After that we discuss about the symptoms, treatment and prevention. Okay. So the very first disease is common cold. सो व्हाट इज़ कॉमन कोल्ड, जो जनरली हमें सर्दी खांसी होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो इसका इंट्रोडक्शन हम देखते हैं. कॉमन कफ कोल्ड जो है वो एक वायरल इन्फेक्शन के थ्रू होता है और ये बहुत जल्दी ही रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में स्प्रेड होता है और ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है. इसका जो कॉमन कोल्ड का जो वायरस होता है, जो कि हम राइनो वायरस कहते हैं इसको, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में अफेक्ट करता है और फिर सर्दी हमको होती है. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ कॉमन कोल्ड. So here I write the definition of common cold. This is a viral infection which spread very fast in the respiratory tract. A cold is a viral infection of the upper respiratory tract. The most common virus which is caused by the common cold is rhinovirus. Okay. So common cold it is a viral infection which is spread very fast to the respiratory tract. And then it is a viral infection of upper respiratory tract. Here the respiratory tract is divided into two portions, the upper respiratory tract and the lower respiratory tract. In the upper respiratory tract, the organs are associated, that is nasopharynx, oropharynx, larynx, pharynx, trachea, and the nasal cavity, nose, mouth, and our buccal cavity as well, because the tract is merges to the event pipe. So and then the trachea, the larynx, these all are the upper respiratory tract. And then after the trachea, the bronchus, bronchioles, alveoli, and the branches of bronchus, and the lungs, the pleural, these all are the come under the lower respiratory tract. Okay. So the upper respiratory tract infection, which is caused by the rhinovirus, it is a virus of common cough cold. So here the definition is to be clear. It is a viral infection which is spread very fast to the upper respiratory tract, and it is most common virus in which is caused by the rhinovirus. So it is the definition. After that we have come to the symptoms, sign and symptoms. The symptoms of acute respiratory tract infection, the common cold. Here the symptoms are running nose, बहुत ज़्यादा रनिंग नोज़ होगी. ठीक है. सर्दी ज़ुकाम जैसा लगेगा. उसके बाद इनिशियली ये थोड़ा नेज़ल सिक्रेशन होगा, थोड़े हमको सिक्रेशंस होंगे. आफ्टर दैट इट गेट थिकर. कुछ टाइम के बाद वो जो नेज़ल में से म्यूकस जो सिक्रीट हो रहे हैं, जो भी नेज़ल सिक्रेशंस हो रहे हैं, थोड़े थिन होते हैं. फिर कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद वो थिक हो जाते हैं. ठीक है. थिक कंसिस्टेंसी के हो जाते हैं. उसके बाद कफ कोल्ड होगा, उसके बाद फीवर होगा, डायरिया भी हो सकता है. बिकॉज डायरिया इसलिए होता है, बच्चों को तो ये जनरली होता है, डायरिया इसलिए होता है कि जो कफ है वो हमारे स्टूल के थ्रू भी पास आउट हो जाएगा. सो डायरिया विल ऑल्सो हैपन इन इट. एंड द स्नीजिंग, फटिग होगा, फीवर होगा, सॉर थ्रोट होगा. ठीक है.
फटेग इसलिए थका थका लगेगा, फीवर होगा और सॉर थ्रॉट होगा। तो ये थे इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट वी हैव कम टू द ट्रीटमेंट पोर्शन ऑफ कॉमन कफ कोल्ड। सो एडिक्वेट रेस्ट करवाना है चिल्ड्रन को, चाइल्ड को एडिक्वेट रेस्ट का बोलना है। एंड देन वी शुड said to the children that you have to take plenty of waters, plenty of liquids चीज़ें हमको उसको देनी है, बिकॉज हम जब सर्दी होती है तो हम पानी इतना इंटेक नहीं कर पाते हैं। तो इस कंडीशन में हमको उसको कहना है, इसको एडवाइस करना है कि आप लिक्विड लो, ओके, पानी पियो। तो उसको उसका ये चीज़ ध्यान, जो भी इसके अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्निंग अथॉरिटीज़, वो उसका इस चीज़ का ध्यान रखें। एंड देन use humidifier to the children's bedroom at night, which will help to the children to keep his nose and chest clear, making easier to breathe। humidifier रखना है चिल्ड्रन के बेडरूम में, जिससे कि रात में उसको ब्रीथ लेने में उसके चेस्ट और जो नोज़ है वो खुली खुली रहे, ताकि वो ब्रेथ ले सके, है ना। तो इसलिए ह्यूमिडिफायर रखना है। फिर यूजिंग चिल्ड्रन एक्टिनोफेनिया, दैट इज़ कॉल्ड टैलन, और या फिर आइबुप्रोफेन रखना है। ये एक टाइप का आइबुप्रोफेन एक टाइप का ड्रग है, जिससे कि उसको कॉमन मतलब रिलीफ मिलेगा, और उसको नेबुलाइज्ड भी करना है, जिससे कि उसको जो भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ब्रीदिंग पैटर्न में या ब्रीथ लेने में, तो वो सारे ऑब्स्ट्रक्शन क्लियर हो सकें। सो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ acute respiratory tract infection। And then now we have come to the prevention of that common cough cold। So if we know that a person is suffer from the common cough cold, so the prevention should be taken as an infected child should be kept away from the other children। हमें अगर सर्दी या खांसी ज़ुकाम है तो ये स्प्रेड होता है, because it is airborne sometimes। So we should away from the non-infected person, and and children should, if it we study for children only, so जो भी infected children हैं वो non-infected children से दूर रहे, है ना। एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन और फ्रूट्स देना है, और फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करना है, बिकॉज ये वायरल इन्फेक्शन है, तो ये फॉर्मेट्स के थ्रू भी आपके आप होस्ट एज अ होस्ट वो आपको ले सकता है। देन मेंटेन हाइजीन एंड क्लीनलीनेस। आफ्टर दैट कीप हैंड कर्चिफ वाइल स्नीजिंग, और जब भी आप स्नीज करें तो हैंड कर्चिफ का यूज़ करना है। देन अवॉइड टू कॉन्टैक्ट द एरिया वेयर द इन्फेक्टेड पर्सन वर्क, जहाँ पे इन्फेक्टेड पर्सन वर्क कर रहा है वहाँ पे उसके कांटेक्ट में आने से अपने आप को बचाना है। सो दिस इज़ ओनली द acute respiratory tract infection, the first disease, common cough cold। That's it for today। And next we come to the topic of bronchitis। Today we complete 2 topics because they are very short, so we covered both topics। तो इसमें जो एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन की जो दूसरी डिजीज़ है वो ब्रोंकाइटिस है। तो अब हम ब्रोंकाइटिस देखेंगे। इधर जो ब्रोंकाइटिस में जो आइटिस लगता है, दैट इज़ शोन एज एन इन्फ्लामेशन ऑफ समथिंग, ओके, नॉट ओनली द particular organ, but if it is stomatitis, gastritis, gingivitis, these are the itis term is derived as an swelling, okay। ये swelling चीज़ को मतलब वहाँ पे swelling है, ये वो दिखाता है। So itis is belongs to the inflammation, right। So let's talk about the bronchitis।
Now, what is bronchitis? Bronchitis is an inflammation of bronchus or bronchi. It is an inflammation of bronchi which is produced by the breathing difficulty or coughing. So I write here the definition. Now, what is the definition of bronchitis? So bronchitis is inflammation of the bronchi which leads to mucus production and produced breathing difficulty in child, coughing often brings up yellow and greenish mucus. Okay, it is two types of bronchitis as we seen in the disease. So the first one type of bronchitis is here the first one is an acute and the second one is chronic. Okay, so let's come to the introductory part of bronchitis. As I told you, it is an inflammation occur in the bronchus in the area of the lungs, and it will affect the bronchioles and bronchus, and it create breathing difficulty, and production of mucus is increased at that point, and the greenish and yellowish mucus has to be removed. Okay, so here the definition I wrote. So what is the definition? As you can see, bronchitis is an inflammation of the bronchi which leads to the mucus production and produce breathing difficulty in child. Okay, the coughing often bring up yellow or greenish mucus. क्या हो रहा है यहाँ पे? जो ब्रोंकाइटिस है वो एक इन्फ्लामेशन है जो ब्रोंकाई में होता है, जो जिसके कारण म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ता है, और ये म्यूकस के प्रोडक्शन बढ़ने के कारण ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो रही है जिससे कि कफ जो है वो क्या कर रहा है, येलो और ग्रीनिश म्यूकस में कन्वर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा म्यूकस के प्रोडक्शन होने की वजह से. एंड so this is the definition of bronchitis. Next, the type of bronchitis is it is a two type of bronchitis. For the first one is acute and the second one is chronic. So the acute is it is often caused by same viruses. मतलब किसी बहुत ही जनरली कॉमन, मतलब यूजुअली ये कॉमन कफ कोल्ड की वजह से हो गया, एक आध बार हो गया, दैट इज़ कम अंडर द एक्यूट. और ये स्टार्ट होता है ऐसे सॉर थ्रॉट से, फिर रनिंग नोज़ होगा, फिर साइनस में इन्फेक्शन होगा. तो ये सारी चीज़ों की वजह से एयरवे में, मतलब ये जो वायरस है इसका वो एयरवे में स्प्रेड हो गया, तो उसकी वजह से ये डिज़ीज़ कॉज हो गई. तो ये एक्यूट में आ गया. लेकिन क्रॉनिक में तब हो जाता है जब ये चीज़ हो चुकी है, पहले ही ब्रोंकस में इरिटेशन हो रहा है, पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी है. देन अगेन दिस थिंग्स विल बी रिपीटेड सो दैट इट कम्स अंडर द क्रॉनिक. ओके, इट इज़ अ सेकेंड टाइप ऑफ ब्रोंकाइटिस.
Next we come to the symptoms. Symptoms of bronchitis are okay, I wrote here so you can see what are the symptoms of bronchitis. The very first symptoms of bronchitis is cough. The first symptom of bronchitis is cough. The second symptoms of bronchitis is shortness of breath. Then the second is wheezing. Third, wheezing. Then rattle. Then the fifth one is discomfort. Mild fever, chest pain. So here the sign and symptoms of bronchitis. What are the symptoms of this? Is the very first symptoms is cough. कफ होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होगी ऑब्वियसली, वीजिंग साउंड आएगा जब भी हम कफ या खांसेंगे तो हमको साउंड सुनाई देगा, ठीक है. देन रैटल सेंसेशन होगी. रैटल सेंसेशन मतलब ऐसा लगेगा जब हम खांसते हैं तो बहुत ज़्यादा दम भर के खांसते हैं, तो उससे क्या होता है, ऐसा लगता है हमारे जब स्टमक एक्सपेंड होता है तो इस तरीके से सेंसेशन होते हैं कि यहाँ पर कुछ चल रहा है, मतलब हमारी चेस्ट या प्लोरल कैविटी में कुछ भी ऐसे सेंसेशन होंगे कि कुछ चल रहा है करके, तो हम उसको इजेक्ट करने की कोशिश करते हैं. ओके तो इजेक्शन में क्या आता है, हमारे म्यूकस प्रोडक्शन जो होता है वो रिमूव होता है, ठीक है. उसके कारण हमको डिस्कम्फर्ट होगा, माइल्ड फीवर भी रहेगा, चेस्ट पेन होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कफिंग होने की वजह से, सॉरनेस होगी, चेस्ट टाइटनेस लगेगा, एकदम कंजेशन जैसा फील होगा, ओके, चिल्स फील होगा. तो ये आता है हमको ब्रोंकाइटिस में. फिर ये एक्यूट सिम्टम्स है, ठीक है. ये जो सिम्टम्स है ये एक्यूट के अंदर आते हैं क्योंकि हम दो टाइप पढ़ रहे हैं, तो क्रॉनिक और एक्यूट पढ़ रहे हैं, तो ये एक्यूट के अंदर आएंगे. अब क्रॉनिक के अंदर क्या सिम्टम्स आएंगे, क्रॉनिक में हमको क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ब्लड आएगा इसमें, तो ब्लड स्ट्रीक्ड विथ स्प्यूटम, ठीक है. ब्लड स्टिक्ड होगा स्प्यूटम में, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, ओके. देन फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगा, देन वीजिंग होगा, फटिग होगा, देन हेडेक होगा. ओके दीज आर द क्रॉनिक सिम्टम्स ऑफ द ब्रोंकाइटिस. इसमें क्या हो रहा है, ब्लड आएगा स्प्यूटम के साथ, ओके मतलब खकार के साथ जो ब्लड है वो आएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगी, इसमें भी फ्रीक्वेंटली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे, मतलब कुछ भी हो रहा है पर रेस्पिरेटरी ट्रैक में तो इसमें वो चीज़ें इन्वॉल्व होगी, मतलब बहुत जल्दी ही कैच कर लेगा, ओके. देन वीजिंग साउंड इसमें भी आएगा, फटिग और हेडेक. It is a common symptoms of acute also, okay. So fatigue और headache होगा.
देन व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑफ इट्स इज़, हम इसका ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, अगर दोनों ही ट्रीटमेंट हम देखें तो इसमें सबसे पहले हम एनाल्जेसिक्स देंगे, एंटीपायरेटिक्स देंगे। एनाल्जेसिक्स इसलिए क्योंकि इन्फ्लामेशन है, ओके। तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं ब्रोंकाइटिस की। तो जो ब्रोंकाइटिस है वहाँ पे इन्फ्लामेशन है ब्रोंकियल्स में, सो दैट हम वहाँ पे एनाल्जेसिक देंगे जिससे कि हमारा जो इन्फ्लामेशन है वो क्या हो, रिड्यूस हो सके। देन वी हैव गिवन एंटीपायरेटिक्स एज वेल बिकॉज फीवर इज़ देयर। तो फीवर को रिड्यूस करने के लिए और पेन को और डिस्कम्फर्ट को रिड्यूस करने के लिए हम क्या देंगे, एनाल्जेसिक्स एंड एंटीपायरेटिक्स देंगे। देन मेडिकेशन कॉल्ड ब्रोंकियोडायलेटर्स, ब्रोंकियोडायलेटर्स देंगे जिससे कि ब्रोंकियल्स का मतलब सपोज इस तरीके से हो रहा है ना, ये हमारा ब्रोंकस होता है, तो यहाँ ये है ना, यहाँ पे बहुत सारा म्यूकस भर गया है तो ये जगह नैरो हो गई है, तो हम ब्रोंकियोडायलेटर्स देते हैं जिससे कि जो ब्रोंकस है वो एरिया क्या थोड़ा सा एक्सपेंड हो, थोड़ा डायलेटेशन हो सके जिससे कि हमको ब्रीथ प्रॉपरली हो, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रोंकियोडायलेटर्स देंगे टू पास द लंग्स और ऑब्स्ट्रक्शन जो भी है उसको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट इज decongestants may be also given to relieve the bronchitis. Coagulants जो होते हैं वो जो decongestants देंगे जिससे कि जो congested फील हो रहा है ब्रोंकियल्स में और ब्रोंकाइटिस की वजह से वो रिमूव हो सके। सो डिकंजेशन देंगे, कंजिस्टेंस देंगे और लॉट्स ऑफ फ्लूइड देंगे क्योंकि हम मतलब ऑलरेडी वो पानी नहीं पिएगा, मतलब कफ एंड कोल्ड में तो हम पीते ही नहीं है ज़्यादा, पर ये सारी डिजीज़ में भी हमको फ्लूइड इंटेक उतना प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है, तो फ्लूइड इंटेक का हमको एडवाइस करना है और उसको देना भी है, ठीक है। और वार्म और मॉइस्ट एयर में रखना है। वार्म और मॉइस्ट इन द सेंस कि जो ऐसा नहीं कि ठंडी कोल्ड ब्रीज़ में हमको उसको रखना है, इससे क्या होगा, कफ का प्रोडक्शन और ज़्यादा होगा। तो वार्म और ह्यूमिड वाली जो एयर होती है जिससे गर्मी पैदा और कफ निकले, इस तरह की हमको वार्म और मॉइस्ट एयर में रखना है। देन अपराइट सिटिंग पोजीशन बैठाना है क्योंकि जब हम सुपाइन पोजीशन में लाइंग डाउन होंगे, जब हम लेटते हैं तो हमें हमारा जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और सांस लेने में दिक्कत होती है, तो हमेशा उसको अपराइट पोजीशन इस तरीके की होती है, हम सीधा जैसे चेयर पे बैठते हैं वैसे, तो उस तरीके से हम उसको अपराइट पोजीशन में बैठाएंगे और ऑक्सीजन और ह्यूमिडिफायर देंगे जिसको हम वो भी कहते हैं, नेबुलाइजर भी कहते हैं। सो दिस ऑल दोज थिंग्स शुड बी गिवन। नाउ वी हैव कम टू द प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज़ इन्फेक्टेड चाइल्ड से दूर रखना है, ठीक है। जो इन्फेक्टेड है वो नॉन इन्फेक्टेड चाइल्ड को इन्फेक्टेड चाइल्ड से दूर रखना है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन और फूड का कहना है, ठीक है। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग के इसमें भी बोलना है। हाइजीन मेंटेन करना है और हैंकरचिफ रखना है। अवॉइड करना है कांटेक्ट जो उसके साथ काम करने में जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड है, और लिमिटेड एक्सपोजर होना है कोल्ड और डैम्प चीज़ों से, मतलब ठंडी हवाओं से और ठंडी चीज़ों से लिमिटेड ही एक्सपोज होना है। So that's all for today. Both the disease we have covered today, the common cough cold and the bronchitis. So thank you class, thank you everyone. Now tomorrow we study about pneumonia, and this is also a very short disease, so later on we discussed about it, and then we study about diarrhea, vomiting and constipation to the children. Okay. Thank you.